young people, you may think, just get to know each other a little bit. Dating, they are called dating. Then we will enter into nighting. और जवान लोग जो है कहते हैं कि ये हम जानना चाहिए, हम इस तरह डेटिंग करना चाहिए. Not one dating one, then passing, then dating another one. Your all life will be dating. You will never get married. और इस तरह हम अगर डेटिंग ही करते रहेंगे, एक से डेटिंग फिर दूसरे से डेटिंग, तो इसी तरह हमारा जीवन गुजर जाएगा, कभी विवाह भी न होगा. Keep a distance. Keep yourself pure before God. हम दूरी को रखें और अपने आप को परमेश्वर के सामने हम पवित्र रखें. Jacob kept his life purity before God. और याकूब ने जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरह शुद्ध रखा. Those days there was no Bible. और उन दिनों में तो बाइबल भी नहीं था. Jacob passed away. और याकूब गुजर गया. And the tribes, Levi, he passed away. और लेवी का जो कुल था वो भी गुजर गया. After Levi, fourth generation, Moses was born. और लेवियों के बाद चौथी पीढ़ी में मूसा जन्म लेता है. Moses wrote the Bible. और मूसा ने जो है शास्त्र को लिखा. And give the law and rules. और वह नियम देता है, प्रमाण को देता है. Before that they lived only according to their conscience. और उस समय में वो सिर्फ अपने अंतःकरण के अनुसार जीते थे. They had a fear of God in their heart. परंतु उनके हृदय में परमेश्वर का भय था. Do you hear me? और क्या आप सुनते हैं? Amen. आमेन. Now, Lord told to Jacob, I have seen your agony, what your uncle Laban trying to do. Now, get up and go to the place where you promise something that you will build a house for me. और परमेश्वर कहता है याकूब से, मैंने देखा है कि तेरे मामा लाबान क्या कर रहा है तेरे साथ, इसलिए अभी तू जा उस जगह पर जहां पर तू मेरे लिए मंदिर बनाएगा. Maybe in the time of trouble, in the time of need, in the time of despite of all the calamity, you may make some commitment and covenant to God. If you do this and I will do this, and it is like a flying in the air. Forget, but God remembers it. और हो सकता है कि परेशानी के समय में, कठिनाई के समय में परमेश्वर के सामने हम कुछ वादा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और उस बात को शायद हम भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर उसे याद रखता है. After 20 years, Lord told to Jacob, where you put the stone and oiled it and anointed the oil and promised to change the name into Bethel. This all he understood, he knew, he remembered, and told, you go to that place. और परमेश्वर कहता है कि वो जगह पर जहां पर उस पत्थर पर तूने तेल लगाकर अभिषेक किया, उस जगह को जिसने तूने बेतेल करके कहा, उस जगह पर वापस तू जा. You may be once upon a time, no house, no car, no facility, nothing, living in a rented home. You may be praying, God, if you bless me, I will do this and that. Where are they? Are you really fulfilled it? और ऐसा समय, even if you forget, God remembers all those. और शायद ऐसे समय थे जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, गाड़ी घर कुछ नहीं था और भाड़े के घर में रहते थे, तब परमेश्वर से हमने मन्नत मांगी और वादा किया. आज हम क्या उस वादे को याद रखते हैं? अगर हम भी भूल जाएं, परमेश्वर उसे याद रखता है. And also go to your homeland. और वो कहता है कि तेरे घर के देश में जा. Now there his elder brother Esau is living. और वहाँ तेरा बड़ा भाई ईसाऊ रहता है. He is the one to kill Jacob, that's why he ran away. और वही ईसाऊ को हत्या करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए याकूब भाग गया. How he will face his brother? और ये ईसाऊ से जाकर कैसे मिलेगा? He used his brain very wisely. और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है. After he went near to that area, he sent the messengers to Esau and told, hey Esau, your servant Jacob is coming. Actually, he is not servant, he is master, and Esau is servant according to God's promise. और यहाँ पर ये अपने भाई के नजदीक जाते ही ये क्या करता है, संदेशकों को भेजता है और कहता है कि तुम्हारा गुलाम जो है आ रहा है तुमसे मिलने के लिए, पर सच में तो ये मालिक है और ईसाऊ गुलाम है, परंतु ये इस तरह अपने आप को कहता है. Even though he had a high calling, he humbled himself, he esteemed other better than himself. और इसकी बुलाहट तो ऊंचा थी, महान थी, परंतु ये दूसरों के सामने अपने आप को नम्र करता है और दूसरे को ऊंचा स्थान देता है. Sometimes there is a high calling, high promise about our life, visions or dreams that will make us to buffed up like a balloon and don't submit to anybody. और बहुत समय में ऐसा होता है कि जब हम जानते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी एक बुलाहट है, बड़ा दर्शन परमेश्वर ने दिया है, तो हम अपने आप को फुगा देते हैं और किसी का बात हम सुनने तैयार नहीं होते. That is danger.
और वह बहुत ही खतरनाक है, That is danger. और वह बहुत खतरनाक है। Now he's sending your servant Jacob is coming. और वह कहता है कि तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा नौकर जेकब, ये याकूब आ रहा है। And Esau said, and go and tell Jacob, we 400 people coming. Jacob doesn't know what to do. और ईसाऊ कहता है कि मेरे भाई से जाकर कहो कि हम 400 लोग आ रहे हैं। और एक याकूब को पता नहीं कि अब क्या करें। Suddenly he changed his mind. और तुरंत जो है वो अपने मन को बदलता है। He earned all the materials, cows and camels and donkeys with great pain in his life. और बहुत ही तकलीफ के साथ इसने जो कुछ कमाया था, जो भी संपत्ति इसने कमाया था। Please turn with me Genesis. और उत्पत्ति के पुस्तक हम खोलें। Read verse 32, verse 4, 5 and 6. Okay, first. और उत्पत्ति 32 अध्याय 4, 5 और 6 हम पहला पढ़ेंगे। और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यों कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यों कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। When he heard that Esau coming with 400 people, और जब इसने सुना कि ईसाऊ 400 लोगों के साथ आ रहा है, he don't know what to do, इसे पता नहीं कि क्या how करें to face. और कैसे मैं उसकी सामना करूं। Now he cannot go back because Laban is very angry. और पीछे भी नहीं जा सकता हूं, लाबान बहुत गुस्से में है। Now he cannot go forward, but Esau is coming with 400 people. और आगे भी नहीं जा सकता है, ईसाऊ आ रहा है 400 लोगों के साथ। So he tried to send with some gifts ahead to Esau to cool him down. और इसलिए वह ईसाऊ को जो है वह कुछ ऐसे पुरस्कार भेजता, देन भेजता है उसे ठंडा करने के लिए। Please read verse 14 and 15. 14 और 15 वचन हम पढ़े। अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे। My. Just calculate how much it will cost. Many lakhs of rupees worth. और ये काफी लाखों का संपत्ति है। He was willing to lose this so that he need to win his brother to reconciliation. और अपने भाई के साथ मेल मिलाप करने के लिए ये सब देने के लिए वो तैयार हैं। So what he thought, read verse 20. और 20वां वचन हम अगर पढ़े, और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। The reason he sent this material ahead, so to cool him down. और ये भेंट आगे भेजने का ये कारण है कि वह भाई को ठंडा कर सके। This is a very good method. और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। If somebody is really angry with you, अगर कोई तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्से में है, this Diwali you get trousers, pants and sarees and shirts very cheap price. Buy a set or two and send with somebody. You know. और दिवाली में जो सस्ते में हमें जो वस्त्र या भेंट मिलते हैं उसे हम ले और लोगों को हम इस तरह हम भेजें। Nallai halwa is very famous. Buy some Nallai halwa or some laddu, Mysore pak, something. Send it and who is really angry with you. Not one. Send 7 gifts, man. Then you go. और अलग अलग मिठाई और इस प्रकार के भेंट को हम लेकर भेजें और फिर उसके बाद हम जाएं। Jacob thought surely with this he can meet his brother. और याकूब को लगा कि ये इसके बाद जो है वो जाकर अपने भाई से मिलूंगा। But what happened? परंतु क्या हुआ? Chapter 32. और 32वां अध्याय, No, chapter 33 verse 1. और 33वां अध्याय पहला वचन, याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है, तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। Okay, now he saw
400 people with Esau coming from other side. और वो देखता है कि ईसाओं के साथ 400 लोग उस बाजू से आ रहे हैं Gift already gone. और ये भेंट तो चला गया है, But that never changed his mind. परंतु ये उसका मन को नहीं बदला Still he had bitterness and anger in his heart. और अभी भी उसके दिल में जो है कड़वापन है। When he saw with long distance 400 people are coming, और जब इसने देखा कि 400 लोग दूर से आ रहे हैं, immediately he divided the family into few sections. और ये अपने परिवार को अलग अलग करता है। And concubines, I mean his not the real wife, but okay, and separate first their children first, then Leah second, and her children last, Rachel and her children. और पहला वो जो है उसके जो रखेल होते हैं उनके बच्चों को आगे रखता है, फिर उसके पीछे लेहा और उसके बच्चों को, और उसके पीछे जो रेचल और उसके बच्चे जो है वो उनको सबसे पीछे रखता है। If something happens, Rachel and child must be protected. Amen. और कुछ भी हो जाए तो रेचल और उसके बच्चे जो है बच जाएंगे। Then what he did? और उसके बाद वो क्या करता है? After that, Jacob went in front of all these wives and the children, bow down 7 times. 1, 2, 3, and bow down before Esau and marched. और ये सब लोगों के आगे याकूब जाता है और ईसाऊ के सामने जाकर 7 बार वह दंडवत करता है। But God actually told your brother will bow down before you. परंतु परमेश्वर ने तो कहा था कि तेरा बड़ा भाई जो है तेरे सामने दंडवत करेगा। Now he is bowing down to his brother. It shows humility. परंतु ये अपने बड़े भाई के सामने दंडवत करता है, ये नम्रता को दिखाती है। When he bowed down, his wife also bowed down. और जब ये दंडवत करता है तो इसकी पत्नियां भी जो है ईसाऊ को दंडवत करते हैं। Children also bow down. और बच्चे भी इस प्रकार से दंडवत करते हैं। Esau came and embraced his brother Jacob and kissed and cried. The anger was disappeared. और ईसाऊ जो है अपने भाई को गले लगाता है और उसे चुम्बन देता है और उसका क्रोध चला गया। For reconciliation, Jacob had to pay a price. और इस प्रकार से मेल मिलाप करने के लिए याकूब को कीमत चुकाना पड़ा। First, he doesn't want to hold himself. Who I am, what God spoke about my life. I am the greatest. He humbled himself and esteemed his brother greater than himself. और पहला तो यह है कि याकूब जो आशीष पाया है उसने जो मैं महान हूं की वो स्थिति को वो छोड़कर अपने आप को नम्र करता है। Secondly, he was willing to lose his resources so that he should not lose the relationship with his brother. और दूसरी बात यह है कि उसके पास जो संपत्ति है उसे वो खोने के लिए तैयार होता है ताकि वो रिश्ता को वो खो न जाए। And the reconciliation took place. The fulfillment of his promise came upon Jacob's life. और वहां पर वो मेल मिलाप होता है और वहां याकूब के जीवन में परमेश्वर का आशीष आता When है। Jacob left his home, even that time his father's eyes were blind, he could not see properly. और जो याकूब जब घर छोड़कर गया तभी वो उसके पिताजी उसे देख नहीं पा रहे थे। After many years, after almost 20 years, now he come back. और अभी करीब Father was still living. और अभी करीब 20 साल के बाद याकूब वापस आ रहा है और पिताजी अभी भी जिंदा हैं। And told Jacob all the blessing God has done in his life. और याकूब ने बताया वो सब आशीष जो परमेश्वर ने उसे दिया है। Reconciliation brings God's blessing into our lives. और इस प्रकार का मेल मिलाप करना ये परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में लाती है। Don't think my neighbor is doing witchcraft. That's why I am going down and down. और आप ऐसा नहीं सोचे कि मेरा पड़ोसी जो है जादू टोना करता है मेरे विरोध में इसीलिए मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। Don't think other people always trying to put me down and taking all the benefit out of me. That's why I am poor. और ऐसा न सोचे कि दूसरे लोग सब मुझे नीचे कुचलते हैं और मुझसे लाभ लेते हैं इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। The reason you are not willing to reconcile with your enemies. और कारण तो यह है कि तुम्हारे दुश्मनों के साथ तुम मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं हैं। Still keeping revenge in the heart और अभी and भी discernment in heart. और अभी भी तुम्हारे दिल में तुम बदला लेने की भावना को रखे हैं। That blocks the blessing of God. We can see a picture from a man called Uriah. और उरिया करके एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। He was a man, faithful man.
और वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, Okay? He is faithful. और वो विश्वास योग्य। And Uriah was the armor bearer to Joab. और उरिया जो है योआब का उसका हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति था। He was not the only one. There was another 3 armor bearer. He was the 4th one. और इसके अलावा और 3 ऐसे लोग थे जो उसके हथियार को पकड़ते थे। ये चौथा व्यक्ति Even था। in his absence, there are other 3 armor bearers there to help Joab. और ये जब नहीं हो तब बाकी 3 जन है इसकी सहायता करने के लिए। Now you know the story how David fell into sin because of Bathsheba. और हम ये कहानी जानते हैं कि दाऊद किस तरह पाप में गिरा बत्शेबा के कारण। To cover that sin, he called Uriah from the war front line. और इस पाप को ढकने के लिए दाऊद उरिया जो लड़ाई के युद्ध मैदान में है वहां से उसे बुलाता है। Rather than repenting and turning, he thought if Uriah comes and lives in this home, this problem can be solved. और ये अपने पाप के लिए पश्चाताप किए बिना ये सोचता है कि उरिया को अगर मैं बुलाकर उसके घर में भेज दूं तो ये पाप जो है छिपाया जाएगा। Recently he was married, maybe a year old. After a marriage 1 year, that person should not go to war. After a year, he can go to war. और So he नहीं- went to war after a year of his marriage. और नई शादी हुई थी और ऐसा नियम था कि शादी होने के बाद 1 साल तक वो लड़ाई के लिए नहीं जाए और 1 साल के बाद ही ये लड़ाई के लिए गया था। But now David called Uriah to come back from the warfare. और अभी दाऊद जो है उरिया से कहता है कि तुम लड़ाई से वापस आओ Ask few questions. और उससे कुछ सवाल करता है। How is war? How is Joab? How is everything going on? और युद्ध कैसे चल रहा है? He said everything is fine. और वो कहता है कि सब कुछ ठीक है And gave permission to go to his home. और उसे अनुमति दी कि वह अपने घर जाए। His home is not very far from David's house. और उसका घर दाऊद के घर से तो दूर नहीं है। That's why when Uriah's wife took bath, David could see. और इसीलिए जब उरिया की पत्नी जो स्नान कर रही थी तब दाऊद देख He सका। might be 1 or 2 months in the warfare. और हो सकता है कि 1 महीना या 2 महीना वह लड़ाई में है। Maybe his house may be on the way to David's palace. और हो सकता है कि दाऊद के महल के रास्ते में उरिया का घर है। He never went to his home. He was obedient and submission to his commission was given to him. और ये उरिया घर नहीं जाता है परंतु उसे जो जिम्मेदारी दी गई है उसी में लगे रहता है। Even though if he would have gone and come back, David won't say anything because he has wife, he understands the feeling and emotions. और अगर वो घर जाकर भी आया होता तो दाऊद कुछ नहीं कहा होता। Now the permission was given, और अभी उसे अनुमति तो दी गई है but he refused to go to his home. परंतु वह घर जाने के लिए न कहता है। Just imagine. और इसे कल्पना कर देखें। Because his mind was motivated with the war. We need to win in the war. We need to capture those people. Hallelujah. क्योंकि उसका मन जो है इस लड़ाई से प्रेरित हुआ था और उसका एक ही लक्ष्य था कि हम इस लड़ाई में जीतना चाहिए। When he refused to go to his home, secondly, David provided lot of gifts to Uriah, so he will take those gifts and give to his wife. और जब दाऊद ने देखा कि ये अपने घर नहीं जा रहा है तब इसे काफी भेंट वो देता है ताकि उसे लगता है कि फिर ये अपने पत्नी के पास जाकर अपने भेंट को दे। Even though Uriah didn't go to his home. और इसके बावजूद भी उरिया घर नहीं जाता। Thirdly, David made him to drink, gave him liquid so he can drink, and really with alcoholic, so that he will forget about the war and go home. और दाऊद ऐसा करता है कि उरिया को वो शराब पिलाता है ताकि वह युद्ध के बारे में भूल जाए और घर जाए। And after drinking, he slept with other soldiers under veranda on the cool day. Never went. और यहाँ फिर हम देखते हैं कि उरिया जो है दूसरे सैनिकों के साथ ये पीने के बाद भी उनके साथ ही सोता है और जो है वह घर नहीं जाता है। Now David writing a letter और अभी दाऊद एक चिट्ठी लिखता है to Mr. Joab. और योआब को वो चिट्ठी लिखता है। The man who bring him with this letter, put him to the front line. When the enemies comes and violently attack, you all withdraw, let he die. और वो कहता है कि ये व्यक्ति जो इस चिट्ठी को ला रहा है इसे लड़ाई जब बहुत तीव्रता से होती है तब इसे आगे भेजो ताकि ये युद्ध में लड़ाई में मर जाए। Gave the letter to Uriah. Uriah bowed down. और Yes, king. I will hand over this letter to
Joab. और वो राजा जो है उरिया को देता है, उरिया राजा के सामने सिर झुकाकर वो ले जाकर योआब को देता है। If somebody gives you a letter to post on the way, अगर कोई तुम्हें चिट्ठी दे पोस्ट करने के लिए, हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। മുടിഞ്ഞു തീർന്നു തൊലഞ്ഞു. और इस तरह हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। Uriah was running. और उरिया दौड़ रहा है Never went to his home. और वह घर नहीं गया Gave the letter. और उसने चिट्ठी को दिया। They are the foreigners. Finish their task faithfully. और उन्होंने जो है अपने काम को उन्होंने विश्वास के साथ उन्होंने पूरा Are we किया। faithful in little things? और क्या छोटे बातों में हम वफादार रहते हैं? Are we copying somebody else or copying Jesus? और क्या हम और किसी का नकल करते हैं या यीशु मसीह का हम नकल करते हैं? And Uriah was an example for faithfulness. और उरिया जो है ये विश्वास योग्यता के लिए वह एक उदाहरण है। David never killed Uriah, और दाऊद ने तो उरिया को नहीं मारा, but his brain worked behind it. परंतु दाऊद का दिमाग इसके पीछे काम किया। So God told to David, because you killed Uriah, I divide the kingdom into two. From now onwards, there will be fighting and pain in your family. और उस परमेश्वर ने कहा कि तुमने उरिया की हत्या की, इसलिए तेरा राज्य को मैं दो भाग करता हूँ और आज के बाद हमेशा तेरे घराने में लड़ाई होगा। Because you shed the innocent blood, the faithful man's blood, you shed it. क्योंकि तूने एक निष्पाप व्यक्ति के रक्त को तूने बहाया है। If you are faithful, if anybody touch you, God will revenge back and you will be protected. Amen. अगर हम विश्वासु रहते हैं तो परमेश्वर उसका बदला लेगा और वह हमारी सुरक्षा रहेगा। Be faithful. और विश्वासु हम रहे। Amen. Another important matter, as we the disciples of Jesus Christ, we have to be avoiding bad companies. और एक बात जो हम विश्वासी उसके शिष्य है, हम ये इस तरह होना चाहिए कि गलत बातें जो है हम नहीं कहें। You might be a good person, because of your bad company with bad people. You may be in the trap. They may escape. They know 100 ways. You will be in the trap. हम जो है गलत लोगों के साथ हम संगति नहीं रखे, हम अच्छे लोग होंगे परंतु उन लोगों की वजह से हम शायद फंसे। So Paul was giving a warning to Timothy, avoid such people like this. और इसीलिए पौलुस तिमोथी से कहता है कि ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखना। Please read 2 Timothy chapter 3. और दूसरा तिमोथियों का पुस्तक 3 अध्याय, Read verse 1 to 5. और 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भाषा तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे से परे रहना। Some people think when this happened, this is the last days. Paul was not writing that at all. He was giving a warning to Timothy. You have to avoid from these kinds of people so you can keep yourself purity and pure before God. और कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे कार्य अगर होता है तो ये अंतिम दिन आ गए, परंतु ऐसा नहीं। पौलुस तिमोथी से कहता है कि ऐसे लोगों से तू अलग रहना। And also when he wrote to Corinthians says, avoid bad companies. और कोरिन्थियों को लिखते समय वह कहता है कि ये बुरे संगति को तुम नहीं रखना। 1 Corinthians chapter 15 verse 33. और पहला कोरिन्थियन 15वां अध्याय 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
Any other translation in English? Bad companies. Deceived, evil company corrupts good habits. Do not be deceived. When we deceive, we will never know that we've been deceived. We'll be only known after we've been deceived. और Bad company will corrupt you. So be careful. और धोखे में हम ना आए, जब धोखे में रहते हैं तब हमें पता नहीं चलता, बाद में ही पता चलता है। इसलिए वो कहता है कि बुरी संगति के साथ नहीं रहना। Why Paul was giving this instruction? और ये सलाह पौलुस क्यों दे रहा है? He was remembering an incident happened to the son of David years ago, remembering in his mind. और ये दाऊद के पुत्र का जो दाऊद का जो घटना है उसे याद है, जिसे मन में रखकर वो कहता Now we है। are going to look that incident happened in the Old Testament. और पुराने नियम में वो घटना जो घटी उसे हम देखें। 2 Samuel chapter 13. और दूसरा शामुएल 13वां अध्याय, Please read verse 1 to 6. और 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी। Okay. David had many wives. और दाऊद के पास अनेक पत्नियां थी। Here mentioned about a particular girl's name, Tamar. और एक लड़की के बारे में कहा गया है तामार। Tamar, she was the daughter of David, और वो तामार दाऊद की बेटी है Absalom's sister. और अबशालोम की बहन। What happened to this girl? और ये लड़की को क्या हुआ? Next passage. उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। उस पर दाविद का पुत्र अम्नोन क्या किया? मोहित हुआ। What a bad. Amnon is born through David, but different mom, different mother, but they are brothers and sisters. और अम्नोन जो है दाऊद का ही पुत्र है, परंतु दूसरी माँ का दूसरी पत्नी के द्वारा जन्म हुआ है। But Amnon was a good man. परंतु अम्नोन जो है अच्छा व्यक्ति था। He was not doing any bad at all. और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। But she was so pretty, he was temptation coming to his mind. और But he was overcoming. और वो सुंदरी थी और ये प्रलोभन में पड़ रहा था, परंतु ये उस पर विजय पा रहा था। He was good man and overcoming. और ये अच्छा व्यक्ति था, उस पर वो विजय पा रहा Then था। read next what happened. और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वो क्या पड़ गया? This बीमारी no X-ray will show. और ये बीमारी कोई भी एक्सरे नहीं दिखाएगी। That's why some students who go to the hostel study. There's a good soup and good noodles and everything, but never put on weight. This is the main sickness. और हॉस्टल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे भोजन का खाते हैं, फिर भी वे जो है तंदुरुस्त नहीं रहते, उसका कारण यही है। Now, his friend, close friend comes. और अभी उसका मित्र Ask a question. और नजदीकी मित्र आता है और सवाल करता है। क्या आप पढ़िए? और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो योनादाब. What is the name of his मित्र? योनादाब. और उस मित्र का नाम है योनादाब, जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था। और वो बड़ा चतुर था। वो चतुरता नहीं, बड़ा चतुरता। और He was PhD for crookedness. और सिर्फ चतुर नहीं परंतु बड़ा चतुर था। Immediately his mind will click what to do in the correct time. और ऐसे ठीक समय में उसका दिमाग सही से काम करता है। He was the friend of Amnon. और वो अम्नोन का मित्र है। Amnon was an innocent man. He was overcoming with the temptation. He was getting little weak, that's all. But never did any wrong. और अम्नोन जो है ये इस प्रलोभन से वो उठ रहा था, वो कमजोर हो रहा था, परंतु इस पर विजय हासिल कर रहा था। But the Yonadab could have given good suggestion. और योनादाब यहाँ अच्छी सलाह दे सकता था। Amnon, you are the son of David. और अम्नोन तो दाऊद का पुत्र है। From a king's family. और If you do any wrong, it will affect the whole kingdom. Better leave away, go away, avoid, run away, or go somewhere else. और तू Don't think this will spoil you. और ये तू राजा के घराने का है, इसलिए तो ऐसा सोच मत, और ये यहाँ से तू दूर चला जा, क्योंकि ये पूरे तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। You know the cunning man what he told him? परंतु ये व्यक्ति क्या कहता है उसे? आप पढ़िए। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण
है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है, क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। Giving crooked idea. और ऐसे आइडिया वो देता है, क्रिकेट आइडिया देता है। Instead of avoiding and protecting him, he told, pretend yourself sick. Don't tell fever. Your daddy will come and may touch, but tell you have some stomach problem, something. Lay down. When your daddy comes, tell there is only one solution. My sister Tamar need to come and make some alwa, some murukku, some achappam, adrasam, and something in front of me. If she cook it, my sickness will go. And pretend. So he was laying down, pretending. और वो कहता है कि इस तरह से तो, और इस तरह वो लेटा रहता है और दाऊद आता है। What is doing? और क्या हो गया? I don't know. और I don't know. और ये कहता है, मुझे पता नहीं क्या हो I गया। don't know. Tabar. Cake, alwa. Cooking. I need to see. और इस तरह वो कहता है कि तामार आकर मुझे मिठाई बनाकर खिलाए। അവനെ ആ എണ്ണ ചട്ടിയോടെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. So far, only in the emotion. Now, his father believed him, sending his daughter Tamar into his house with many of her friends. और उसके पिताजी ने इस बात पर विश्वास किया, उसने अपने बेटी को उसके सहेलियों के साथ उसने भेजा। After he told his crookedness, he left and went back to the king's palace. और ये उसका मित्र योनादाब जो था, इस सलाह को देकर वो चला गया। Now who is in the trap? This unknown good boy is in the trap. अब ये जाल में कौन है? ये अम्नोन जाल में फंसा है। He was David's first son. और ये दाऊद का पहला बेटा है। When she was cooking, all his sickness is gone. Oh, he's a pretty beauty. Hey girls, as you put on lot of makeup, you are inviting temptation to other people. You have to be very careful. और जिस तरह वो बना रही थी, तब इसकी बीमारी सब चली गई। और इसी तरह जब हम ज्यादा मेकअप डालते हैं तो हम जो है परेशानी को हम बुलाते हैं। A lot of people do lot of makeup, even they don't wash their face. और बहुत लोग जो है अलग अलग मेकअप इस तरह लगाते हैं। Everything is used for necessary, unnecessary stuff. और जो आवश्यक है उसे हम इस्तेमाल करें, अनावश्यक चीजों को नहीं। Do you follow me? और क्या आप समझ रहे हैं? Then Amnon fell with sin to Tamar. और अम्नोन जो है तामार के साथ पाप करता है। Commanded all the young girls to depart from that room. और And he did fornication with his own sister. और उसने सब लड़कियों को बाहर जाने के लिए कहता है, अपने बहन के साथ वे विचार करता है। Absalom kept it in his heart. और अब्सोलोम ने इस बात को अपने दिल में रखा। After 2 years, Absalom killed Amnon. 2 साल के बाद अब्सोलोम ने अम्नोन की हत्या की। That news first passed to David was this Jonadab. और ये संदेश को जो है दाऊद तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति था योनादाब। He was playing 2 play here and there. और योनादाब जो है 2 चाल चल रहा था। So Bible says avoid bad companies. और इसलिए बाइबल बताती है कि ऐसी बुरी संगतियों से अलग रहो। Those people know all the crooked how to avoid, how to escape, and you will be in the trap. और ये लोग जानते हैं कि किस तरह ऐसी बातों से बच जाए, परंतु तुम जाल में फंसोगे। This is something that we, the disciples, have to understand very clearly. और ये ऐसी बात है जो हम यीशु के शिष्य, हम इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। Do you know what I mean? और क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. Amen. आमीन।
Someday parents or relatives will correct. Don't talk, don't deal more closer to such person. Oh, mommy, I know, I can handle. और जब माता पिता कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ नहीं मिलना, तब बच्चे कहते हैं कि मम्मी मैं सब कुछ जानता हूँ. Now, no need to go to theater. In the internet, you can watch all the movies. और अभी थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, घर में इंटरनेट में ही हम देख सकते हैं. They spend many hours talking through cell phone, all laughing. Only marriage doesn't take place through phone, but the rest of everything is taken through phone. और घंटों तक जो फोन में बातें करते रहते हैं, सिर्फ विवाह नहीं होती, उसके अलावा बाकी सब कुछ होता है. Nobody knows what is talking. और कोई किसी को पता नहीं कि क्या बोलते हैं. But keep your heart pure in the fear of the Lord. और परमेश्वर के भय में अपने हृदय को शुद्ध रखे. There is nobody but God sees you. और कोई भी नहीं देखे परंतु परमेश्वर देख रहा With है. the fear of the Lord, keep yourself pure. और परमेश्वर के भय में हम अपने आप को पवित्र रखें. David says, I keep the Lord all the time in front of me. और दाऊद कहता है कि हर समय मैं परमेश्वर को मेरे सामने रखा हूँ. So my mind and my heart and my soul will be refreshed. Amen. और मेरा मन और मेरा प्राण और मेरी आत्मा जो है वो ताजा होगी. Another important topic we need to understand, we have to be submissive. और एक मुख्य बात जो हम समझना चाहिए कि हम अधीन होना चाहिए, अधीनता में रहना चाहिए. Jesus did not come to do his own will. He came to do the will of his Father. और यीशु मसीह अपने मर्जी को करने के लिए नहीं आए परंतु उसके पिता की मर्जी को करने आए. Totally he submitted his Father. और पूर्ण रूप से अपने आप को उसने पिता के अधीन कर दिया. Once he went to the pool of Bethesda, और वो बेथेस्दा के पूल के वहां पर एक बार यीशु मसीह गए. where many people were laying there. और वहां पर बहुत लोग उधर पड़े थे. He healed only one person left there. और सिर्फ एक ही को उसने चंगा किया और वहां से चला But at गया. the same time there were many other sick people. और उसके अलावा उधर काफी बीमार लोग थे. Because Father wanted to heal only one person that time. परंतु उस समय में पिता ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगा करना चाहा. Sometime he healed all the people. और दूसरों समय में सब लोगों को उसने चंगाई दी. Because that time Father wanted to heal all the people. क्योंकि उस समय में पिता ने सब लोगों को चंगा करना He चाहा. died to his own self will and he was allowing to fulfill the will of his Father. और यीशु मसीह अपने मर्जी को छोड़कर वो सिर्फ पिता की मर्जी को पूरा कर रहे थे. Now God has entrusted Jesus to reconcile the world. After everything come under reconciliation, even after that Jesus will submit to his Father. He will start eternal kingdom. और यीशु मसीह को परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि ये संसार को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाए. और ये मेल मिलाप करवाने के बाद भी यीशु मसीह अपने आप को पिता के अधीन रखकर ही वो अपना नित्य राज्य शुरू करेगा. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 28. और पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय Verse 20 to 28. और वचन 20 से 28 उठा है. और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से. पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. इसके बाद अंत होगा. उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है. सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है. परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा. और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो. Is it clear? और क्या ये स्पष्ट है? After everything, और सब बातों he के made बाद into subjection. He himself will subject to the Father. Then he will start the eternal kingdom. और सब कुछ अपने अधीनता में लेने के बाद वह अपने आप को पिता की अधीनता में कर वह नित्य राज्य शुरू करेगा. Submission
come from God. और ये आदिम था जो है परमेश्वर से आता है। Lucifer doesn't want to submit. और लूसीफर जो है अपने आप को अधीन करना नहीं He चाहा, wanted to become something above God. और वो परमेश्वर के ऊपर कुछ बनना चाहा। But Jesus came as a second Adam and submitted. परंतु यीशु मसीह दूसरे आदाम के रूप में आकर अपने आप को अधीन करता है, Will be submitting even the eternity. और वो नित्य नित्य हमेशा के लिए वो पिता के अधीन ही रहेगा। Amen. आमीन। Happiness, there's a joy, there's a sorrow, there's a all compact. और उसमें आनंद है, खुशी है, दुख है, उदास है, सब कुछ है। I don't know how yesterday's movie was touched your life. I have seen several times. Every time I see, it speaks to my own heart. और मुझे पता नहीं कि कल का वीडियो है जो वीडियो किस तरह तुम्हें स्पर्श किया। हर बार जब मैं देखता हूँ वो मुझे बहुत स्पर्श करता है। Tonight also I'll be showing another video, only a shorter video. It will be more tough than what you have seen yesterday. और आज रात को भी हम एक वीडियो दिखाएंगे, वो कल जो हमने देखा उससे भी ज़्यादा कठिन रहेगा। I'll be teaching sometime, then we'll be waiting some time and to hear God's word through my wife, and also spending some time in prayer for the Holy Ghost to move among us. और उसके बाद मैं थोड़ा प्रचार करूंगा, उसके बाद हमारी पत्नी वचन लाएगी और फिर हम प्रार्थना करेंगे। Make it available that God can work in us and flow through us. और हम अपने आप को दे कि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे और वो हमारे द्वारा बहे। Please read Luke chapter 9 verse 23. और लूका के 9वां अध्याय 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Okay, Jesus said to the disciples, those who are willing to follow, you must take up the cross daily and follow me. और वे शिष्य जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहे उनसे यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आते हो तो तुम्हारे सूली को उठाकर तुम्हें हर दिन मेरे पीछे चलना पड़ेगा। Otherwise, please don't disturb me, follow somebody else. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे मेरे पास नहीं आओ और किसी के साथ जाओ। It was so simple. और ये बहुत आसान है। Ordinary unlearned fishermen understood what Jesus meant. और साधारण नहीं पढ़े लिखे मछली पकड़ने वाले व्यक्ति इसे समझ लिए। You want to follow me, you must have a mind to take the cross daily and follow. अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वो मनस्थिति होनी चाहिए कि मैं क्रूस को उठाकर हर दिन चलूंगा। Crown and throne shows majesty and power and authority. और ये मुकुट और ये काट और सिंहासन जो है ये अधिकार को दिखाता है। But cross shows shame, despise, rejection, suffering and death. परंतु ये सूली जो है ये तुच्छ जाने जाना और मौत और श्राप को दिखाती है। Sermon on the Mount, Jesus taught outstanding kingdom principle to the followers of Jesus. और उस पहाड़ के ऊपर जो सीख यीशु मसीह दे रहे थे काफी अच्छे सिद्धांत अपने शिष्यों को भी सिखा रहे थे। Matthew 5, 6, 7, these are the foundation of Christian living. और मत्ती 5, 6, 7 में हम यही देखते हैं जो मसीह जीवन का बुनियादी सीख है। This is Jesus teaching to the new followers. और ये जो है नए उसके जो शिष्य है उसके पीछे अनुयायी है उन्हें वो सिखा रहा है। Not to the leaders, not to the matured people, but to the newborn disciples. और वे पुराने विश्वासी या लीडर्स को नहीं परंतु नए उसके अनुयायी जो है उन्हें वो सिखा रहा है। Please open with me Matthew chapter 5 verse 10 and 11 and 12. और मत्ती के 5वां अध्याय 10, 11 और 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। People speaks evil against you और जब लोग तुम्हारे विरोध में बोलते हैं and despise you, और तुम्हें तुच्छ समझते हैं, he said, cry. Yes. और क्या उसने कहा कि तुम रोने लगो। What did he say?
rejoice. और वो कहते हैं कि That तुम आनंदित means हो। lift both hands and jump like this और उसका and मतलब round like this. और उसका मतलब यह है कि इस तरह That's the हाथ meaning. हाथ उठाकर इस तरह उछल कूदो, Because your reward in heaven is so great. क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार जो है स्वर्ग में बहुत ही महान है। The question, और ये सवाल, do you like to have reward in heaven or not? और क्या हम स्वर्ग में फल पाना चाहते हैं? Yes or not? But some people tell, yes, but not through this way, some other way. और कुछ लोग कहेंगे हम फल तो पाना चाहते हैं परंतु इस तरह से नहीं। There is no other way, only one way. और कोई रास्ता तो नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। Amen. आमीन। Luke chapter 6, और लूका के 6 अध्याय verse 22 and 23. और 22 और 23वां वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। Early followers understood, if we've been suffered for Christ, there will be a great reward in heaven. और आरंभ के उसके शिष्य ये जानते थे कि अगर यीशु परमेश्वर के लिए हम सताए जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रतिफल है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And also, on the Passover, Jesus sat in the Passover table and washed the feet of the disciples. और वहाँ उस पर्व के समय में यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों के पैर को वे धोते हैं। That we see John Gospel 13. और वहाँ वो जो है यूहन्ना 13 अध्याय में हम देखते Well, हैं। he sat there on the Passover table. He taught John Gospel 14. और वहाँ उस मेज में, उस पर्व के उस मेज में जो है यूहन्ना 14वां अध्याय वो सिखा रहे हैं। End of that chapter, Jesus said, "Let arise and go where? To Gethsemane." और उस अध्याय के अंत में यीशु मसीह कहते हैं कि हम उठेंगे और हम गेत्सेमने की तरफ जाएंगे। Now the disciples are going to Gethsemane. On the way to Gethsemane, he taught John Gospel 15 and 16. और गेत्सेमने के जाने के रास्ते में यूहन्ना के 15वां 16वां अध्याय यीशु मसीह सिखाते हैं। So please turn with me John Gospel chapter 15 verse 18 and 19. और यूहन्ना 15वां अध्याय 18 और 19वां वचन, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Okay, next word. जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। These were the last words Jesus speaking to his followers. और ये यीशु मसीह के अंतिम वाक्य है जो शिष्यों को बोल रहे हैं। If these people treated me ill and badly, persecuted me, remember, you will also be persecuted. अगर ये लोगों ने मुझे सताया है तो याद रखो कि तुम्हें भी ये लोग सताएंगे। But when that happened, remember, your reward in heaven is so great. और वो कहता है कि जब ये होता है तब जान लो कि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। Do you hear me? और क्या आप सुनते हैं? Chapter 16 verse 1 and 2. और 16वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। Oh, not only they will persecute you or despise you and put your name evil, but they will kill you. When they kill, they will think that they are sacrificing unto God. और so they understood, oh,
now or later we may become martyrs for Christ. और वे तुम्हें सताएंगे और परेशानी नहीं करेंगे, परंतु तुम्हारी हत्या भी करेंगे, और तुम्हारी हत्या करते समय वे ऐसे समझेंगे कि वो परमेश्वर के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। यानी ये शिष्य जानते थे कि उन्हें जो है प्रभु के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा। Do you hear me? और क्या आप सुन रहे हैं? Yes. Amen. आमेन। One day a Sunday school teacher, he taught about rich man and Lazarus. और एक दिन एक संडे स्कूल टीचर ने वो अमीर व्यक्ति और लाजरस के बारे में सिखाया। After the class is over, the teacher asked, "Hey, boys, tell, like whom you like to be, like Lazarus or like a rich man?" और वो क्लास होने के बाद बच्चों से उन्होंने पूछा कि तुम किस तरह बनना चाहते हो, लाजरस के समान या वो अमीर व्यक्ति के समान? There was a wise boy. His name is Johnny. He told, "Sir, I will tell you." और एक चतुर बच्चा था, वो जॉनी नाम का था, वो उसने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ। And he stood up and told, "I want to be a rich man here in this earth, and when I get home in heaven, I want to be like Lazarus." और उसने कहा कि यहाँ पृथ्वी पर उस अमीर व्यक्ति के समान रहना चाहता हूँ, और स्वर्ग में जाने के बाद लाजरू के समान बनना चाहता हूँ। If it works, fine. अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, If it doesn't work, also fine. अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी ठीक है। Amen. आमेन। Amen. After he died, और वो मरने के बाद, after he rose again, और वो पुनरुत्थित होने के disciples went out everywhere and preaching the gospel. और शिष्य सब जगह जाकर प्रचार करने लगे। Apostles, they've been brought into the council and beaten very badly. और प्रेरितों को उन्होंने ले आकर उन्होंने पीटा और मारा। Acts chapter 5 were 40 and 41. और प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 41 और 42, 40 और 41 वचन। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने की योग्य तो ठहरे। Amen. They've been beaten very badly and sent them out and told, "Do not speak anymore about this name." But Bible says they gladly went out, never stopped preaching about Christ every day, house to house, and the temple preaching about Christ. और उन्होंने बुरी तरह से मार कर निकाला, तब भी ये जो है खुशी के साथ जाते हैं, आनंदित होकर जाते हैं, उसके बाद भी रुकते नहीं, परंतु हर घर जाकर वे प्रचार करते हैं। Because they believed their reward in heaven will be great. क्योंकि वे विश्वास करते थे कि उनका फल जो है स्वर्ग में महान है। Now they brought Stephen to be stoned. और अभी उन्होंने स्तेफान को लाया उसे पत्थर से मारने के लिए। Before that he was brought to the court. और सबसे पहले उसे कोर्ट में ले आते They हैं। were false accusers stood and told everything against Stephen. और उसके विरोध में जो है इल्जाम लगाते हैं, सब झूठा इल्जाम लगाते हैं। All those people were in the magistrate in the court. They looked his face. और वहाँ के जो महासभा में जो अधिकारी बैठे थे वे स्टेफान के चेहरे को देखते हैं। Acts chapter 6, the last word. और 6वां अध्याय प्रेरितों के कार्य 6वां अध्याय और अंतिम वचन। Not like the face of monkey. और बंदर के मुख के चेहरे के समान नहीं। When they looked, they saw the Stephen's face like a face of an angel. और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान है। Because he understood they are telling false accusation. क्योंकि वह जानता था कि ये झूठे इल्जाम लगा रहे They हैं are adding my reward in heaven. और स्वर्ग में मेरे फल को और बढ़ा रहे So हैं। Stephen was smiling and his face was smiling. और इसीलिए स्तेफान जो है वो हंस रहा था और उसका चेहरा हंस रहा था। Those days when people throw the stone, they will never throw stone to the head or chest. They will never do. और उन दिनों में जब
पत्थर से मारते थे तो उस पत्थर को सिर के ऊपर या छाती के ऊपर नहीं मारते, They used to throw the stone from feet up to the abdomen और वो नीचे पैर से यहाँ कमर तक मारते and break the bones and make them pain. And after a long time, they will throw either head or chest and kill, then pile stones and go. और यहाँ नीचे के भाग को जो है हड्डियों को तोड़कर सताकर पीड़ा देने के बाद उसी के बाद सिर में वे पत्थर मारकर उसे फिर पत्थरों से भर देते। Now people started throwing stone to Stephen. और अभी स्तेफान के ऊपर जो है पत्थर मार रहे He हैं। couldn't travel. His leg is broken, but he could slowly kneel down. और उसके पैर में उन्होंने पत्थर मारा, वो Still- चल तो नहीं सकता परंतु वो घुटना टेकता है। Still they haven't started throwing stone at heaven in the head, only in abdomen, because till their anger quenched, they will throw the stones. और अब तक उन्होंने सिर के ऊपर उन्होंने पत्थर नहीं मारा है, परंतु नीचे के भाग में वो पत्थर मार रहे हैं और जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता तब तक मारते रहेंगे। He looked up to heaven, he saw Jesus not sitting in the right hand, but standing in the right hand. और जब उसने स्वर्ग की तरफ देखा तो वहाँ यीशु को देखता है, यीशु बैठे हुए नहीं परंतु यीशु पिता के दाहिने ओर खड़े हुए हैं। The same Jesus could have stopped stoning, but he never stopped stoning. और वही यीशु मसीह ये पत्थर जो मारते हैं लोगों को रोक सकते थे परंतु उन्होंने रोका नहीं। I told Stephen, I am here to receive you. उन्होंने कहा कि स्टेफनुस मैं यहाँ पर हूँ तुझे स्वीकार करने के This लिए। pain, sorrow for a small period. और ये दर्द जो है ये तो सिर्फ थोड़े समय के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Do you follow me? और क्या आप समझ रहे हैं? Do you understand it? वो समझ रहे हैं? Are you willing to go through it? और क्या हम इससे गुजरने के लिए तैयार हैं? Do you want reward here or there? और हमें फल यहाँ चाहिए या स्वर्ग में चाहिए? कहाँ चाहिए आपको? हमको कहाँ पर चाहिए? Here now. और अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ है It costs maybe about 50 or 60 rupees valuable things. और वो शायद 40-50 रुपए का होगा, But there is a diamond which will cost 1 lakh rupees. परंतु यहाँ एक हीरा है जो 1 लाख रुपए का है I really like that. और मुझे वो पसंद है। But at the same time, I don't want to leave this also. परंतु उसी समय ये भी मुझे छोड़ना नहीं है। Can I take it? I cannot take it. और क्या मैं उसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। If I take that, this will go. अगर वो मैं लेता हूँ तो ये गिर जाएगा। पोनाल पोगट्टु पोड़ा. We will get something better than this. Amen. और इसे जाना है तो जाने दो, हम छोड़ देंगे क्योंकि इससे बेहतर हमें वो मिलेगा। You follow me? और क्या आप समझ रहे हैं? Now we are going to look from John's Gospel. और अभी हम देखेंगे यूहन्ना के शुभ संदेश से What kind of suffering and agony Jesus undergone? और किस प्रकार के दर्द और वेदना से यीशु मसीह गुजरे। It is recorded in all 4 Gospels. और ये सब ये चारों शुभ वर्तमान में लिखा हुआ है। Matthew, Mark, Luke, John. और ये मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना चारों में लिखा है। When we think about the suffering and agony of Christ, we think the suffering and agony he undergone on the cross of Calvary. और जब यीशु मसीह के दर्द के बारे में हम सोचते हैं तो वो सूली पर जो दर्द लिया उसी को हम याद करते हैं। That is the B part of suffering. और वो तो उसके दर्द का दूसरा भाग है, बी भाग है। There was a part of suffering in the life of Christ. परंतु यीशु मसीह के जीवन में उसके तकलीफ के पहला भाग भी एक था। So totally we can divide into 2 parts, A part and B part. और इसलिए उसके तकलीफ को जो है 2 भाग में हम अलग कर सकते हैं, एक ए पार्ट और दूसरा जो है बी भाग। Tell each other, A part, B part. और एक दूसरे को हम कहेंगे ए भाग और बी भाग। Use your hand also. A part, B part. ए भाग और A बी part. भाग। Okay. B part, A part starts from the time he took baptism under John till he went to Gethsemane. और ए भाग का उसकी तकलीफ जो है वह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है तब से शुरू होता है गेत्सेमने तक। B part starts from Gethsemane until he died on the cross of Calvary. और बी भाग दूसरा भाग जो है गेत्सेमने से वो सूली पर जब मरता है तब तक होता है। B part of suffering we preach for the gospel's
message, and also when we come to break the bread, we remember the B part of suffering. और उसके ये दूसरा भाग जो तकलीफ के दूसरे भाग है उसे हम उसके बारे में हम प्रचार करते हैं, और जब प्रभु भोज में आते हैं तभी उसे हम याद करते हैं. That suffering was preordained by his father, that his son need to go through that pain and agony and death so that the whole world can get salvation. और वो दर्द और वो पीड़ा जो था वो परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि यीशु मसीह उससे गुजरे ताकि पूरे संसार का उद्धार हो. This is a suffering God the Father preordained before the foundation of the world. और ये- His son must go through it. और ये वह पीड़ा थी, वह तकलीफ थी जो पिता ने इस संसार के उत्पन्न के पहले ही उसने नियुक्त किया था कि यीशु मसीह से गुजरेंगे पाप के प्रायश्चित के लिए. None of us can take part in that suffering. और हम में से कोई भी उस पीड़ा में हम भाग नहीं ले सकते. But a part of suffering परंतु उसका पहला भाग तकलीफ का जो he है has undergone because of he lived kingdom living, he preached kingdom message. और उसे वो तकलीफ इसलिए हुआ क्योंकि वो राज्य का जीवन जिया और राज्य का वचन उसने प्रचार किया. Because of that he has undergone lot of persecution to show us, to show the followers, if I have been persecuted, you also will be persecuted. और उसके कारण जो है वो काफी तकलीफ में आया, काफी परेशानी से गुजरा, ये दिखाने के लिए कि अगर मुझे वे सताते हैं तो तुम्हें भी इसी तरह सताया जाएगा. He set a footprint before the followers to follow. और हमारे सामने उसने जो कदम के चिन्ह रखे हैं ताकि उसके शिष्य उसके अनुसार चले. Okay? Okay? It is two part. A part, B part. Everybody knows B part, so I am not going to explain. So I am going to explain the A part now. और ये उसकी तकलीफ के दो भाग जो है, दूसरा भाग जो सूली का भाग है हम सब जानते हैं, पहला भाग हम बताते हैं.